Well, this is Dr. Muzammil Liaquat Ali, and I'm here to talk to you today about inhibitors and types of inhibitors. Uh, this is your lecture number 4 for this particular topic, that is enzymes, right? And here we go with the course context. Where the just right enzymes. Right? This is included in your final exam, right? 1 SCQ and 5 MCQs. Let's have a look on the course outline. Uh, number 1, number 2, number 3 हम कर चुके हैं. Isozymes हम आखिर में करेंगे. Most probably डॉक्टर यासिर आपका ये लेक्चर लेंगे, क्लिनिकल इसके एंजाइम्स के लेक्चर, राइट. और आज हम जो करेंगे एलोस्टेरिक एंजाइम्स, biological significance at point number 5, right? और number 6 पे हम कल के हैं factors affecting the. Number 7 पे है types of enzyme inhibitors and their biochemical करते हैं आज इसमें इंशाल्लाह देखते हैं, right? प्लीज मेक दिस वेरी श्योर कि जो कोर्स कंटेंट्स में चीजें सिर्फ वही करेंगे हम, उससे ज्यादा उससे कम नहीं करेंगे, राइट? और यहाँ पे हम देखेंगे नंबर 8 पे भी, ये भी हम इसमें देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एंड काइनेटिक्स ऑफ एंजाइमिक एक्टिविटी, मिकालिस मेंटन इक्वेशन, और इसके साथ हम देखेंगे लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट को डेरिवेशन, राइट? लास्ट जो लेक्चर्स आपके जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली उसमें रेगुलेशन ऑफ एंजाइमिक एक्टिविटी नंबर 9 पे, और नंबर 10 पे थेराप्यूटिक यूजेस जो हैं, उनको हम कंटिन्यू करेंगे, राइट? लर्निंग रिसोर्सेज आर द सेम, राइट? फ्रॉम द लिपनकॉर्ट चैप्टर, सॉरी, we're having some problem, right? All right. Lippincott chapter 7, Lippincott 7th edition, chapter 5, page 53 to 57, right? And of course, the most important thing is to have a look on the learning objects of today's session, right? You guys will be able to define and discuss some of the basic types of enzyme inhibitors and their biochemical importance, right? इसके साथ हम करेंगे in effects of competitive and non-competitive and uncompetitive inhibitors on enzyme activity, right? And the third one will be the allostatic enzymes and their biological significance, right? I repeat, if you guys have any query, any question, right? So you guys are open to send your questions. Surely मैं उसको आंसर करूँगा, ठीक है जी? Well, let's start with the inhibitors and types of inhibition. ठीक है जी? इनहिबिटर्स को अगर हम डिफाइन करते हैं, इनहिबिटर्स को अगर हम डिफाइन करें तो एंजाइम्स को हम कुछ इस तरह All right. Enzymes, inhibitors को हम define करते हैं. Inhibitors are basically the molecules that can limit or can create hindrance or
can reduce the rate of reaction of any enzyme, right? जो किसी भी रिएक्शन में अगर एंजाइमिक एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसको जो है इनहिबिटर जो है उसको ब्लॉक करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इसकी कुछ डिटेल्स हम देख लें इनहिबिटर्स की। दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, राइट। अगर हम इसकी बात करते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर एंड ऑफ कोर्स व्हेन दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, तो हम बात करते हैं दे ब्लॉक, दे बेसिकली रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज, राइट। सो यहाँ पे अगर ये माइन्यूट क्वांटिटीज में अगर रिक्वायर्ड हैं the structure of an enzyme, right? They basically block the enzyme. They just only block the enzyme. They do not destroy the structure of an enzyme. As you guys already know, the enzyme is made up of amino acids, right? Minute fluctuation or extremes of temperature, you can say extremes of there are multiple factors, right? आप उसको लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। टेम्परेचर हो सकता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो सकता है, मे बी पीएच हो सकता है। दे कैन डीनेचर द एंजाइम्स, राइट, और द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम। तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लमेटिक होगा for the normal working of an enzyme, right? So inhibitors can act as a drug or the poisons, right? In CNS, some of the common drugs we use in our daily routine, in some of the patients, right, with neurological deficits, हम वहाँ पे inhibitors use करते हैं। आगे इनकी डिटेल आएंगी तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, right? Let's proceed to the types of inhibitors. Inhibitors को हमने define कर लिया। Basically, they are the chemicals that reduces the rate of enzymic reaction. कोई भी reaction हो रहा है जिसमें enzyme participate कर रहा है, inhibitors आते हैं तो वो rate को decrease कर देते हैं, right, reduce कर देते हैं। ठीक है। अब इसकी types की बात कर लेते हैं। Types, there are two main types, right, of inhibitors. The first one is the reversible inhibitors. Reversible का क्या मतलब होगा? Of course, they can be reversed. अगर ये bind करते हैं, if these particular enzymes are bounded with any of the structure, right? So यहाँ पे क्या हो रहा है? तो they are, they bound to an enzyme or a substrate maybe, लेकिन ये क्या करेगा आगे? परमानेंटली इसको ऑक्यूपाई नहीं करेगा अपनी जो साइट जिस पे ये बाइंड करेगा। वो कौन सी साइट है उसको आगे हम देखते हैं, ये कहाँ पे बाइंड करते हैं। ठीक है। इसकी फर्दर कैटेगरीज हैं। अगर हम उसको कैटेगरीज को देख सकें कि इसको हमने फर्दर इनहिबिटर्स को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है आगे फर्दर कैटेगरीज में, लाइक द कंपैटिटिव इनहिबिशन और द इनहिबिटर्स, non-competitive inhibition and uncompetitive inhibition. ठीक है जी। इसमें अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, कंपैटिटिव का मतलब क्या? कंपीट करता है। ठीक है जी। वो इनहिबिटर जो कि अपनी 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 प्रेजेंस शो करने के लिए दे बेसिकली क्या करेगा? दे आर रिवर्सिबली अटैच्ड to the enzyme with either the covalent interactions, maybe the hydrophobic interaction or maybe the ionic interactions. ये multiple weak bonds जो हैं between the inhibitor and the active site of an enzyme, जब ये combine होके सारी चीजें, सारी forces मिलती हैं, they produce a very strong and specific binding. ठीक है जी। ये competitive के लिए compete करता है। They compete with the substrate. एक enzyme पे either a substrate can be attached
or the inhibitor, right? So we can say the inhibitor's action in this very case is directly proportional to the concentration of the inhibitor. Of course, अगर inhibitor आप डाल रहे हैं तो उसकी affinity towards the enzyme to bind at the active site वो ज्यादा है, तो वो bind कर देगा और substrate को bind नहीं होने देगा. And in this very case, competitive inhibitors की case में they are structurally similar or they resemble to the substrate structure. ठीक है जी. नॉन कंपैटिटिव की तरफ आते हैं. नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, यहाँ पे आगे ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है रेज केम ओनली और द लोअर्स वी मैक्स ओनली इन केस ऑफ नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन. आपको नजर आ रहा है यहाँ पे द लोअर्स द वी मैक्स, राइट. ठीक है. ये आगे हम देखेंगे जब ये टॉपिक हम इसको वाइंड अप करेंगे तो वहां पे ये डिटेल में चीजें आपको, यहाँ पे अगर चीजें याद रह जाएं ओके फाइन, नो वरीज, हम इसको एंड पे डिटेल में इसको इंशाल्लाह वाइंड अप जरूर करेंगे. ठीक है. ये आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों लिखा हुआ. ठीक है. लेट्स प्रोसीड विद द नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन. नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन, they are the basically the non-competitive inhibition में या inhibitor के केस में क्या होता है, it inhibits by binding irreversibly to the enzyme but not at the active site. compete नहीं कर रहा है किसी एक साइट के लिए. ठीक है. enzyme पे active site के अलावा और भी बहुत सारी साइट्स हैं, बट इन ऑर्डर टू गेट अटैच्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम वो एक्टिव साइट के लिए compete नहीं करता. ये इनहिबिटर, नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे बेसिकली they bind irreversibly to the enzyme but not at the active site. I guess we're having some issue. Wait, if you guys can please wait. All right. I'm sorry for the interruption, right? All right. हम यहाँ पे थे टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स की बात कर रहे थे, राइट. रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की बात की हमने. रिवर्सिबल में कैटेगरीज देखी हमने. कंपैटिटिव जो compete करते हैं, ठीक है, with at the active site of an enzyme, right? Either the substrate can bind or either the inhibitor can bind to the active site. Non-competitive inhibitor के लिए यहाँ पे आपके पास क्या है, they do not compete with the active site. They basically it inhibits by non-competitive inhibition के लिए ये है कि it inhibits by binding irreversibly to the enzyme. ठीक है. इसको आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको देखते हैं, राइट. The third one is the uncompetitive inhibition. Uncompetitive inhibition के लिए in this very case uncompetitive inhibition या inhibitor क्या करता है, this inhibitor binds only in this case कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ हो, राइट. अगर मैं इसको यहाँ पे मैं इसको कर सकूं, यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अगर बना हुआ है तो ही इसमें ये अनकंपैटिटिव इनहिबिटर या अनकंपैटिटिव इनहिबिशन प्रोसीड होगी. ठीक है जी. द सेकंड कैटेगरी इज द इररिवर्सिबल. इररिवर्सिबल, आपके इसके नाम से हमें पता चल रहा है इररिवर्सिबल है. इररिवर्सिबल का मतलब क्या है, बेसिकली
bind with the active site, और एक्टिव साइट में आपको पता है क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स के फंक्शनल ग्रुप्स हैं. दी they basically, the irreversible inhibitors basically combine with the functional groups or the groups of the amino acid at the active site, the irreversibly or permanently, right? ठीक है जी, ये permanently bind करेंगे और ये उसके साथ उससे डिटैच नहीं होंगे. ठीक है जी, इसको भी कैटेगराइज किया हुआ हमने कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स को हमने फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है कंपैटिटिव में और एलोस्टेरिक में. ये कंपैटिटिव, अगेन कंपैटिटिव ये कंपीट करेगा टू अ पर्टिकुलर साइट, लेकिन ये बाइंडिंग, ये बॉन्डिंग जो होगी वो परमानेंट होगी. सॉरी, कंपीट करेगा परमानेंटली, इसके लिए एक्टिव साइट के लिए कंपीट करेगा और इरिवर्सिबली बाइंड कर जाएगा, परमानेंटली बाइंड कर जाएगा. और एलोस्टेरिक, एलोस्टेरिक इज बेसिकली, एलोस्टेरिक साइट से है. Allosteric site is basically another site other than the active site on an enzyme. आगे इसको देखते हैं, elaborate कर इंशाल्लाह इसको इसी सेशन में इसको करेंगे, इसको डिटेल में देखते हैं. नो नीड टू वरी, अगर कोई क्वेश्चन होंगे आपके तो वो साथ साथ आप सेंड कर सकते हैं. राइट, you guys are free to send your questions. जहां पे कुछ चीज समझ ना आए, raise your hand और just post your question. Right. इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की कुछ एग्जांपल्स आप देख लें. पेस्टिसाइड्स हैं, नर्व गैसेस हैं, राइट. ऑर्गेनोफॉस्फेट एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है, राइट. ठीक है जी. अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू पे चल रहे हैं, इनकी डिटेल जो है हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट. लेट्स स्टार्ट विद द reversible inhibitors. Reversible inhibitors, these inhibitors attach to an enzyme with different types of bondings, right? Like the hydrogen bonding, hydrophobic interactions, ionic bonds, or maybe the covalent bonds, right? नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन, राइट. हम एक चीज रिवर्सिबल के लिए हमें याद रखना है, एक चीज कि नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस हैं. नॉन कोवलेंट का मतलब क्या है कि टेम्पररी वीक लिंकेजेस होंगी, वीक बॉन्डिंग होंगी. ठीक है, इसी वजह से तो हम इनको रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कह रहे हैं. ठीक है, ये आपने मेक श्योर करना है कि इसमें नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस हैं जी. नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, मे बी द आयनिक बॉन्डिंग. ठीक है, और जब ये मल्टीपल वीक बॉन्डिंग जब इकट्ठी होती हैं, they combine to produce a strong and specific binding, right? तो ये परमानेंट नहीं है, रिवर्सिबल है. ठीक है, इसकी आगे हम फर्दर हमने कैटेगरीज डिस्कस की थी. कंपैटिटिव इनहिबिटर्स की तरफ चलते हैं. ठीक है जी, कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, नो नीड टू वरी. यहाँ पे आप जहां जहां कंपैटिटिव इनहिबिशन की बात आ रही है, यहाँ पे इस तरह की कुछ चीज आपको नजर आएगी, रेज केएम ओनली. ये आगे लाइन वीवर बर्ग प्लॉट एक टॉपिक आ रहा है, हम उसमें इसको कवर करेंगे. ठीक है जी, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. कंपैटिटिव इनहिबिशन, ऑलराइट जी. आई नीड योर अटेंशन ऑन योर स्क्रीन, राइट. आप जरा देखिए एंजाइम, यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम है, राइट. यहाँ पे अगर रिएक्शन में एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अगर बाइंड करता है तो ये रिएक्शन प्रोसीड होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है. ठीक है जी, इस एंजाइम के पास एक ही एक्टिव साइट है, एक ही साइट है. ठीक है, और ये सबस्ट्रेट जो हमारे पास है, ये एक ही साइट, वो एक्टिव साइट जो है उसके लिए कंपीट कर रहा है. ठीक है, ये सबस्ट्रेट जो है या कंपैटिटिव इनहिबिशन में, दिस कंपीट विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर एक्टिव साइट ऑन एंजाइम. ठीक है, एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट है, उसके लिए कंपीट कर रहा है. या तो इनहिबिटर बाइंड कर सकेगा या सबस्ट्रेट बाइंड कर सकेगा. यहाँ पे अगर हम देखें नीचे की तरफ रिएक्शन में, इनहिबिटर आई डोनेटेड आई, राइट. यहाँ पे आई के साथ अगर एंजाइम बाइंड करता है, इनहिबिटर के साथ बाइंड करता है, तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देता है. ठीक है जी, इसके पास कंपैटिटिव इनहिबिशन में एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, एंजाइम क्या करे, बाइंड करे विद द इनहिबिटर
और विद द सबस्ट्रेट, कोई और साइट अवेलेबल नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे रिएक्शन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अगर बनता है तो ऑफ कोर्स रिएक्शन प्रोसीड करता है। एंजाइम की डेफिनेशन में आपने देखा है these molecules do take part in a reaction but कंज्यूम नहीं होते हैं, वो एंड पे आपके पास दोबारा से अवेलेबल है। और ये आपके पास यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्रोडक्ट आपके पास मिल गई है। ठीक है, ये कंपैटिटिव इनहिबिशन है। कुछ इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं। These inhibitors or type of inhibitors compete with the substrate molecule for the active site. ठीक है जी। The inhibitor, the action is proportional to its concentration. Of course, अगर इसकी कंसंट्रेशन, इनहिबिटर की कंसंट्रेशन एक ही अवेलेबल साइट है जिसके लिए आइदर द सबस्ट्रेट या इनहिबिटर बाइंड कर सकता है, उन दोनों ने कंपीट करना है, तो ऑफ कोर्स अगर जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो बाइंड कर जाएगा। ठीक है जी। एंड ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ इनहिबिटर्स, कंपैटिटिव इनहिबिटर्स में, कंपैटिटिव इनहिबिशन में रिजेंबल विद द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर क्लोजली, दोनों का स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है। ठीक है, यही डिफरेंस, ये जो कुछ डिस्क्रिप्शन में जो चीजें देखी, ये आपको एंड में भी हम देखेंगे, जहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, डिफरेंस बिटवीन कंपैटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन। वहां पे हम ये डिस्क्रिप्शन जो है, ये जो 3 लाइनें हैं जो हम यहाँ पे कर चुके हैं, ये दोबारा आएंगी। ठीक है जी। आगे चलते हैं नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन की तरफ। नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन के लिए अगर हम देखते हैं, these type of inhibitors basically not influenced by the substrate concentration. उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिंपल सी ये है कि they do not compete with the substrate, right? ठीक है, they do not compete, ठीक है, बट कुछ एक्टिव साइट के लिए ये compete नहीं कर रहे होते। ओके, मेक दिस श्योर कि ये इरिवर्सिबली बाइंड तो हो रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक्टिव साइट के लिए कंपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इसकी इलस्ट्रेशन में हम देखें, यहाँ पे एंजाइम है हमारे पास, राइट। एंजाइम के साथ मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे, नॉन कंपैटिटिव, नॉन कंपीट नहीं कर रहा, कुछ और किसी और जगह पे ये अटैचमेंट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें एंजाइम के साथ, आपका एंजाइम के साथ अगर इनहिबिटर लगाते हैं तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया। एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स के बाद अगर इसमें सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो यहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। एंड अगर एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में से अगर आप इनहिबिटर रिमूव कर देते हैं तो आपके पास दोबारा से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वापस मिल गया। ठीक है जी। और अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे प्रोसीड करता है रिएक्शन, तो एंजाइम आपको वैसे मिल जाएगा, रिकवर हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। यही रिएक्शन अगर यहाँ पे देखें, एंजाइम के साथ अगर सबस्ट्रेट मिल रहा है, डायरेक्टली अगर मिल रहा है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स आपको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दोनों चीजें कंबाइन हो रही हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो कंपैटिटिव के केस में था वो यहाँ पे नहीं है। कंपैटिटिव में क्या था, कंपीट कर रहा था। कंपीट किस चीज के लिए कर रहा था, कंपीट विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, कि आइदर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे या इनहिबिटर बाइंड करेगा। नॉन कंपैटिटिव के केस में क्या हो रहा है, ये एक्टिव साइट पे कंपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कहीं और, वो कहाँ है, वो क्या जगह है, वो आगे हम देखते हैं। ठीक है जी। सम ऑफ द एग्जांपल्स अगर देख लें इसकी, साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड कंबाइंस विद द आयरन, राइट, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में, ये एग्जांपल इसमें बड़ी कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी दफा आ चुका हुआ है ये एमसीक्यू, राइट। हैवी मेटल्स की एग्जांपल हैं, राइट, दे बाइंड विद द सल्फेटेड ग्रुप्स, राइट, एसएच ग्रुप के साथ बाइंड कर जाता है, राइट। हमने इसके लिए बात की थी कि दे inhibit by binding irreversibly to the enzyme. ये irreversibly bind कर रहा है, but to some extent in case of non-competitive inhibitors they can be removed or reversed by using chelating agent like EDTA.
ठीक है जी। ईडीटी अगर आप यूज करते हैं तो ये रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है जी। ओके जी। आगे कंटिन्यू करते हैं। अनकंपैटिटिव इनहिबिशन। अनकंपैटिटिव इनहिबिशन फिर दोबारा से आपको ये नजर आ रहा है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आगे हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। राइट, इसकी जरा डायग्राम पे आते हैं, इसकी इलस्ट्रेशन पे जरा इसको जरा फोकस करें। लेट मी रिपीट, कंपैटिटिव में क्या हो रहा था? कंपीट कर रहा था। ठीक है जी। कंपीट क्या कर रहा था? इनहिबिटर कंपीट कर रहा था विद द सबस्ट्रेट, कि आइदर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा या इनहिबिटर बाइंड करेगा। नॉन कंपैटिटिव के केस में क्या हो रहा था कि वो कंपीट नहीं कर रहा, बट एक्टिव साइट पे नहीं अटैच हो रहा। ठीक है जी। एक्टिव साइट के लिए कंपीट नहीं कर रहा नॉन कंपैटिटिव में। व्हाट अबाउट अनकंपैटिटिव इनहिबिशन? अनकंपैटिटिव इनहिबिशन में एक जो चीज हमने याद रखनी है वो ये है कि अनकंपैटिटिव इनहिबिटर हैं वो तब ही अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे या तब ही अनकंपैटिटिव इनहिबिशन कहेंगे व्हेन देयर इज a complex called substrate enzyme complex, और enzyme substrate complex बना हुआ है तो ही ये आगे इनहिबिटर बाइंड करेगा। इस इलस्ट्रेशन में देखते हैं, एंजाइम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसमें सबस्ट्रेट ऐड हुआ, ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ फॉरवर्ड, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपके पास मिल गया। ठीक है जी। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपको कहीं भी किसी भी जगह पे आपको इनहिबिटर नहीं नजर आ रहा है। राइट, इसकी रीजन क्या है? अनकंपैटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ही इनहिबिटर और अनकंपैटिटिव इनहिबिटर बाइंड करेगा और एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये स्टेप जो है पर्टिकुलरली, ये स्टेप जो है वो रिवर्सिबल है। अगर यहां से एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में से आप इनहिबिटर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रह गया। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अगर प्रोसीड करता है तो आपको एंजाइम मिलेगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पे आपको एक चीज इसकी डिस्क्रिप्शन में याद रखनी है, दिस पर्टिकुलर इनहिबिटर बाइंड्स ओनली इन द केस कि जब आपके पास सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन में भी हमने देखा। ठीक है जी। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है जो हमने यहाँ पे ऊपर पहले ही मेंशन की हुई है कि लोर्स वीमैक्स और केएम ये आगे क्या है, ये आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी इस चीज को स्किप कर रहा हूं मैं। ठीक है, नो नीड टू वरी, ये इंशाल्लाह आगे जैसे ही हम मिचालेस मेंटन इक्वेशन लाइन में वो वर्क आउट करेंगे तो ये सारी चीजें हमें काम आएंगी। ठीक है। इसकी एग्जांपल आप देख लें, इसकी एक एग्जांपल जो है टेट्रामेथिलीन सल्फॉक्साइड, ये बेसिकली इज एन अनकंपैटिटिव इनहिबिटर फॉर द लिवर अल्कोहल dehydrogenase. This is an enzyme, right? Alcohol dehydrogenase, right? अल्कोहल मेटाबॉलिज्म कहीं आएगा आपका सेकंड ईयर में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के चैप्टर में, तो लास्ट टॉपिक में, तो वहां पे आपको ये पता चलेगा अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज क्या है। नो नीड टू गो इन डिटेल, बट आपको यहाँ पे जो चीज याद रखनी है, एग्जांपल इज द टेट्रामेथिलीन सल्फर ऑक्साइड, राइट? ठीक है जी। और अनकंपैटिटिव के केस में, अनकंपैटिटिव इनहिबिशन के केस में क्या हो रहा है, आपका सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये बाइंड नहीं करेगा, अनकंपैटिटिव इनहिबिटर बाइंड नहीं करेगा। ठीक है जी। ओके, all right, let me have a look on the chat room. Chat room में कुछ नहीं है, no question, not at all. ठीक है जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस क्या हैं इनहिबिटर्स की? जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं उनकी एप्लीकेशंस भी ऑफ कोर्स जो हमें पता होनी चाहिए। इनहिबिटर्स में जो जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक होता कैसे है वो आगे हम इसको देखते हैं, राइट? इसको ये सारी चीजें जो टॉपिक हम जो हेडिंग्स हम देख रहे हैं वो डिटेल में आगे डिस्कस हुई हुई, राइट?
इनहिबिटर्स के केस में और इसकी एप्लीकेशन में क्या है, दे मे एक्ट एज अ पॉइजन, राइट। स्नेक बाइट के केस में हम प्लांट अल्कलॉइड्स और नर्व गैसेस जो हैं अगर हम देखें उनके केस में उन इनहिबिटर्स हम यूज होते हैं। मेडिसिन में फॉर एग्जांपल सेडेटिव्स जो हैं, स्टिमुलेंट्स जो हैं, सल्फोनामाइड्स, एंटीबायोटिक्स, ये सारे के सारे इसकी एप्लीकेशंस हैं, राइट। ये अगर शॉर्ट नोट आए आपको किसी की एग्जाम में, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इनहिबिटर्स, तो आप इसको एलैबोरेट कर सकते हैं, राइट। एक एक पॉइंट में मैंने इसको सम अप किया हुआ है। नेगेटिव फीडबैक में एंड पॉइंट और एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे पॉइजन के केस में स्नेक बाइट, प्लांट अल्कलॉइड, नर्व गैसेस लिखा हुआ मैंने। आप इसको कर सकते हैं, एलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स हैं, सैडेटिव्स हैं, स्टिमुलेंट्स हैं, ठीक है। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द इनहिबिटर्स। नेगेटिव फीडबैक कैसे होता है, ये एंजाइमिक एक्टिविटी कैसे होती है, उसको एक एंजाइम पाथवे से हम इसको 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 जरा देखते हैं, ठीक है जी। एंजाइम पाथवेज, सेल प्रोसेसेस जो हैं, जो आपके जो की पाथवेज हैं, वो हो कैसे रहे हैं, वो आपके सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द डिफरेंट एंजाइम। लाइक अगर हम इसको देख सकें यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ए नजर आ रहा है, राइट। एक सबस्ट्रेट है, फिर आगे कंटिन्यू हो रहा है, आगे प्रोडक्ट में यहाँ पे ई ए लिखा हुआ, राइट। एंजाइम ए इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए इनटू बी, ठीक है। सेम अगर इसी के ऊपर देखें, यहाँ पे ई बी लिखा हुआ है, दिस इज एन एंजाइम बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट बी इनटू सी, ठीक है। सेम ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है जी। ईच स्टेप, each very step is controlled by a different enzyme। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 different enzymes, right? तो final uh, to get to have a final product, right? F, A से start किया आपने और F पे आप product ले रहे हैं। So यहाँ पे एक चीज मैं इसको जरा सम अप करता हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है, each step is controlled by a different enzyme, right? So यहाँ पे एक इसकी स्पेसिफिसिटी आपको नजर आ रही होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि EF कन्वर्ट कर रहा है पहले स्टेप को, ठीक है, EA की जगह ले रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंजाइम स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। टाइटली रेगुलेटेड प्रोसेसेस हैं, राइट, जो भी आपके बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को अगर मैं कंटिन्यू करता हूं और आगे, तो एंजाइम पाथवेज में मैंने एंड पॉइंट इनहिबिशन की बात की थी एप्लीकेशंस में। एंड पॉइंट इनहिबिशन में सेम जो लास्ट रिएक्शन हमने किया है, ये डायग्राम जो है, इसी को हम इसी को कंटिन्यू करेंगे टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट, ठीक है। एंड पॉइंट इनहिबिशन में मैं अगर फर्स्ट स्टेप की बात करूं, the first step is controlled by the last product, the last or the end product, जो यहां पे आपको F की फॉर्म में अगर इसको दिखा सकूं यहाँ पे, ऑलराइट जी। ये सारे रिएक्शन, सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं, A to B, B to C, C to D, E and finally F, ठीक है जी। द फर्स्ट स्टेप वो क्या है, A to B। यहाँ पे अगर मैं इसके एंजाइम इसको कर सकूं, राइट जी, EA is an enzyme required to convert A to B, ठीक है। इसी तरह EB, इसी तरह सेम आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रही है, F। एंड पॉइंट इनहिबिशन, एंड पॉइंट जहां पे भी आ गया है, वो डिटरमिन करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि वो फर्स्ट स्टेप को रेगुलेट करेगा या नेगेटिव फीडबैक देगा, उसको कंट्रोल में रखेगा। इससे क्या आप चीजें ले सकते हैं, एक कुछ चीजें समराइज आप कर सकते हैं कि एवरी प्रोडक्ट इज टाइटली कंट्रोल्ड, टाइटली रेगुलेटेड। और क्या हो सकता है इसमें कि एक्यूमुलेशन के चांसेस, बी सी डी ई जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, उनमें जो भी प्रोडक्ट्स आपकी बन रही हैं, उनकी एक्यूमुलेशन के चांसेस जो हैं वो कम हैं,
राइट, बिकॉज कि वो आगे कन्वर्ट होते जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बन रही है उसके आगे एक ऊपर एंजाइम है और आगे उसको कंटिन्यू कर रहा है। और व्हाट अबाउट द एंड पॉइंट इनहिबिशन? एंड पॉइंट हमारे पास क्या था? एफ। एफ क्या कर रहा है? लुक अगेन, लुक, एफ क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है फर्स्ट स्टेप को, राइट। दिस इज कॉल्ड एज एंड पॉइंट इनहिबिशन। जो एक हमने क्या पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इनहिबिटर्स में, नेगेटिव फीडबैक, पहला पॉइंट ही हमने ये पढ़ा था कि एंड पॉइंट इनहिबिशन या एंड पॉइंट, ठीक है जी। नेगेटिव फीडबैक, ये नेगेटिव फीडबैक इस तरह से देता है कि फर्स्ट स्टेप इज कंट्रोल्ड बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन रिएक्शन, के फाइनल उसकी जो भी प्रोडक्ट आएगी वो फर्स्ट स्टेप को कंट्रोल करेगी, ठीक है जी। दिस दिस वाज ऑल अबाउट एंड पॉइंट इनहिबिशन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल में हमारे पास कॉमन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल है द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एन एंजाइम एंड एटीपी की एग्जाम्पल है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इज एन एंजाइम जो कि एक सबस्ट्रेट है हमारे पास, fructose 6 phosphate. This is one of the biomolecule required to produce energy, जो glycolysis में कहीं आपको याद आए, जो आप कहीं पढ़ चुके हो बिगिनर लेवल पे, लेकिन सेकंड ईयर में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये प्रोडक्ट के साथ आप जरूर इसका वास्ता पड़ेगा ग्लाइकोलाइसिस में, राइट। सबस्ट्रेट है हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और हमने एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं एंड पॉइंट इनहिबिशन की या एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इन एग्जांपल, यहाँ पे सबस्ट्रेट इज द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, राइट। और ये रिएक्शन कुछ इस तरह से प्रोसीड होता है इसका, राइट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज अ सबस्ट्रेट, और इसमें क्या आ रहा है? एटीपी ऐड हो रहा है, और आगे कन्वर्ट किसमें हो रहा है? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एंड एडीपी। यहां से क्या हो रहा है? एटीपी से एडीपी बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, और वो फॉस्फेट किसमें ऐड हो रहा है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। जब ऐड हो रहा है एक फॉस्फेट, तो क्या बना रहा है? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। इसमें जो चीज आपके काम की चीज है, एटीपी, एटीपी इज द एंड पॉइंट, एटीपी इज द एंड पॉइंट, जो कि एंड पॉइंट इनहिबिशन करवाती है, ठीक है। इसमें की चीज जो आपने याद रखनी है, दैट इज द एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड पॉइंट, एटीपी इज द एंड पॉइंट, गॉट इट। यहां पे वो कह रहा है, अगर ये रिएक्शन को अगर हम देखें, तो ये रिएक्शन हो क्या रहा है? ये सेल्स में आपके हो रहा है, रेस्पिरेशन पाथवेज में, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द एनर्जी, राइट। यू नो, इन कन्वेंशनल पाथवेज ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज ऑक्सीडेशन के जो कन्वेंशनल पाथवे, ये सेकंड ईयर की कुछ डिटेल्स है, नो नीड टू गो इन डिटेल्स, लेकिन ये डिटेल्स इस वजह से बता रहा हूं कि ये रेस्पिरेटरी पाथवेज में आपके यूज हो रहा है, ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, और ये फिर आगे फाइनल प्रोडक्ट बन रही है। एटीपी की बात करते हैं, एंड प्रोडक्ट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जो आपका जो भी एनर्जी यील्ड के लिए आप बायोमोलिक्यूल्स ले रहे हैं, उसका एंड प्रोडक्ट इज द एटीपी, राइट। इसी रिएक्शन को आगे मैं एटीपी इज द एंड पॉइंट के हेडिंग के साथ इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। द एंड पॉइंट इज द एटीपी। अगर बॉडी में एटीपी अवेलेबल है, अगर एम्पल अमाउंट में एटीपी अगर अवेलेबल है, तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या करेगा? एंजाइम जो है, इसका इंपैक्ट क्या आएगा? एंजाइम विल रिमेन एज इनहिबिटेड, ये इनहिबिट रहेगा, राइट, एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पाथवे हमने पढ़ा है पीछे, ये जो पाथवे है, ये पाथवे, दिस पर्टिकुलर पाथवे, ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस का एक स्टेप है, एनर्जी प्रोड्यूस कर, एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर बॉडी में ऑलरेडी एटीपी अवेलेबल है, तो देयर इज नो नीड टू प्रोसीड दिस रिएक्शन, और देयर इज no need to activate an enzyme
जो कि हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के नाम से था। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली जब आपके पास इफ देयर इज अ लॉट ऑफ एटीपी इन द सेल, दिस एंजाइम विल रिमेन इनएक्टिव और इनहिबिटेड। तो वहां पे क्या होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एटीपी ज्यादा है तो आपका जो रेस्पिरेशन है वो अल्टीमेटली, रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ, एनर्जी प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। टीसीए साइकिल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इन सारी चीजों में ये सारे के सारा प्रोसेस जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो क्या होगा, रेस्पिरेशन जो है वो स्लो डाउन होगी अल्टीमेटली। ऑफ कोर्स एटीपी ज्यादा है तो वो स्लो डाउन हो गया सारा रिएक्शन, जिससे एटीपी प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और जब ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर स्लो होगी तो ऑफ कोर्स एटीपी कम प्रोड्यूस हो गए, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी एटीपी पड़ा हुआ। ठीक है। यहां पे अगर आपने जो चीज याद रखने वाली है कि एटीपी is used up in inhibition stops, right? The reaction speed up again. अगर एटीपी आपके पास अगर कंज्यूम हो जाते हैं, आपके पास पहले क्या था, एटीपी एम्पल अमाउंट में थे और एंजाइम जो इनहिबिट था, और उसका इंपैक्ट क्या आया है, एंजाइम इनहिबिट है तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो उतनी स्पीड से काम नहीं कर रही है, तो अल्टीमेटली एटीपी नहीं प्रोड्यूस हो रही। दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर एटीपी जो है आपके कंज्यूम हो गए हैं, अगर एटीपी कंज्यूम हो गए तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये इनहिबिशन जो है वो अल्टीमेटली क्या होगी, वो रुक जाएगी और रिएक्शन क्या होगा, वो स्पीड अप हो जाएगा और एटीपीज आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। ये एक एग्जांपल है एंड पॉइंट इनहिबिशन में, जो हमने यहाँ पे इसको, इसकी प्रॉपर्टीज में जो मेन चीज थी वो हमने एंड पॉइंट इनहिबिशन के साथ इसको वाइंड अप किया। There's some of the very interesting illustrations, आपको मजा आएगा इसमें। राइट। ऑलराइट। Okay, Usman, you had a question, sir. Shouldn't it be EE in place of EF, right? Usman, let me have look on your concern. आप क्या कह रहे हैं? All right, all right, all right, all right. No problem, no problem. उस्मान, अगर ये में भी टाइपिंग एरर हो सकता है, नो वरीज। ठीक है। वेरी कर सकता है, एंजाइम का नाम वेरी कर सकता है, ये जस्ट एन एग्जांपल, राइट? ठीक है। ये आपके सिर्फ समझने के लिए है। ऑलराइट जी। ऑलराइट। नेक्स्ट टॉपिक इज द, in fact the next section heading is the allosteric inhibition. Allosteric irreversible, make the sure कि irreversible है। यहाँ पे कुछ मजे की इलस्ट्रेशन आ रही हैं। आपको जो इलस्ट्रेशन जो नजर आ रही है उसमें आपको नजर आ रहा होगा, ऑलराइट जी, एक एंजाइम नजर आ रहा है आपको, राइट? येलो कलर में एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है। ठीक है जी। सबस्ट्रेट भी आपको नजर आ गया। ऑलराइट जी। एक्टिव साइट की एक हेडिंग है और एक एलोस्टेरिक की हेडिंग है। एक्टिव साइट में अगर एरो से शो करूं तो एक्टिव साइट इज समवट हियर, जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है विद एन एंजाइम। ठीक है जी। और एलोस्टेरिक इनहिबिशन में, एलोस्टेरिक इनहिबिशन में क्या हो रहा है कि एलोस्टेरिक साइट, एक और साइट अवेलेबल है अदर देन द एक्टिव साइट। ठीक है। वो क्या है, एलोस्टेरिक साइट, जो कि आपको यहां पे नजर आ रही है। ठीक है। एलोस्टेरिक इनहिबिशन है क्या, कैसे होती है, ये आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। एलोस्टेरिक का मतलब क्या है? एलोस्टेरिक मींस अनदर साइट, यही हम देख रहे हैं। लुक, ये इलस्ट्रेशन पे आए, ये एंजाइम आपके पास है, एंजाइम के बाद एंजाइम के ऊपर क्या है, एक्टिव साइट है। ठीक है जी।
एक्टिव साइट इज समवट हियर, ठीक है। अगर पॉइंटर से आपको नजर है, ये आपको जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, और यहाँ पे आगे दूसरी तरफ क्या है, एलोस्टेरिक साइट, जो कि आपको ये नजर आ रही है, ठीक है जी। ओके, ये इसका काम क्या है, ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके लिए एंजाइम को हमें देखना होगा। एंजाइम हैव और सच एंजाइम, और इनमें क्या हो रहा है कि दो रिसेप्टर साइट्स हैं, ठीक है। वो रिसेप्टर साइट्स कौन कौन सी हैं, एक आपको पता है कौन सी है, एक्टिव साइट, एंड द सेकंड वन इज द एलोस्टेरिक साइट, ठीक है जी। एक्टिव साइट, यहां पे अगर हम देखें स्विचिंग ऑफ मैकेनिज्म, एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स की बात करूं, मॉड्यूलेटर्स की बात करूं, इनहिबिटर्स की बात करूं, रेगुलेटर्स की बात करूं, तो दिस इज सेम थिंग, राइट, ठीक है। द अप्रोप्रिएट वर्ड इज द मॉड्यूलेटर, राइट। दे कैन अप रेगुलेट और डाउन रेगुलेट। डाउन रेगुलेटर की बात करूं या मॉड्यूलेटर का कोई टर्म यूज करूं, दिस इज द सेम थिंग, राइट, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। इनहिबिटर जो है, allosteric inhibitor binds to the or fits into the allosteric site। ये क्लियर है। यहां पे अगर देखें तो एलोस्टेरिक साइट हमने ये कही थी, और ये था हमारे पास एक्टिव साइट, ठीक है। ये एंजाइम का स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स हमें पता है। ये आके हमारे पास बाइंड किया अगेन द इनहिबिटर, राइट, एलोस्टेरिक इनहिबिटर, ठीक है। अगर हम इसको इनहिबिटर मॉलिक्यूल, ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल आके अटैच हुआ विद द एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। एंड ऑन द एक्टिव साइट पे आपके पास क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, ठीक है जी। जब इनहिबिटर बाइंड कर गया, जब एलोस्टेरिक इनहिबिटर बाइंड कर गया विद द एलोस्टेरिक साइट, तो एक फिनोमेना होता है यहां पे, कन्फर्मेशनल चेंज, कन्फर्मेशनल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम, जिसकी वजह से आगे फर्दर रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है कि आइदर particular inhibitor allow the attachment site for the substrate or not। तो यहां पे क्या इनहिबिटर के केस में क्या हो रहा है, मैं मॉड्यूलेटर की बात करूं और उसमें इनहिबिटर की बात करूं, या डाउन रेगुलेटर की बात करूं, तो यहां पे अगर इनहिबिटर बाइंड कर गया, डाउन रेगुलेटर बाइंड कर गया यहां पे एट द एलोस्टेरिक साइड, तो क्या है कि ऑफ कोर्स यहां पे आपको इसका स्ट्रक्चर देखें सबस्ट्रेट का, ये मैच नहीं कर रहा है विद द एक्टिव साइट। ऑफ कोर्स सबस्ट्रेट कैन नॉट फिट एट द एक्टिव साइट, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है, और ऑफ कोर्स जब कन्फर्मेशन चेंज नहीं, उसका स्ट्रक्चर ही चेंज नहीं हुआ, तो ऑफ कोर्स आपका सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड नहीं कर रहा है। ये स्विचिंग ऑफ मैकेनिज्म है, ठीक है। एक सिंपल इनहिबिटर बाइंड कर गया विद द एलोस्टेरिक इनहिबिटर बाइंड कर गया, और द इनहिबिटर बाइंड एट द एलोस्टेरिक साइड, तो ये कंप्लीट वो रिएक्शन जिसमें ये एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसपे इनहिबिटर बाइंड कर गया एट द एलोस्टेरिक साइट, तो वो रिएक्शन रुक जाएगा। स्विचिंग ऑफ मैकेनिज्म है, ठीक है जी। द नेक्स्ट थिंग इज ऑन ऑफ स्विच। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। इसी को स्विचिंग ऑफ तो आपने देख ली, स्विचिंग ऑन ऑफ जरा देखते हैं। स्विचिंग ऑन ऑफ में अगर आप देख सकें, यहाँ पे एंजाइम है हमारे पास ऑफ कोर्स, और उसकी एक एक्टिव साइट अवेलेबल है। या एक्टिव साइट पे क्या बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करता है, सबस्ट्रेट फिट होता है इनटू द एक्टिव साइट, ठीक है जी। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको नजर आ रहा है कि सबस्ट्रेट फिट हो गया एक्टिव साइट पे, फिट्स इनटू द एक्टिव साइट, और यहां पे दूसरी साइड पे अगर देखें एंजाइम के, एलोस्टेरिक साइट इज एम्प्टी। इसका क्या मतलब, एलोस्टेरिक साइट इज एम्प्टी का क्या मतलब होगा, इट मींस द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज एब्सेंट, ठीक है। इनहिबिटर बाइंड नहीं किया हुआ, एलोस्टेरिक साइट पे कोई चीज बाइंड नहीं हुई, तो यहां पे टू वे कंफर्मेशनल चेंज हो सकती है, ठीक है। सब मेक दिस श्योर कि यहां पे सिर्फ सबस्ट्रेट बाइंड किया हुआ और एलोस्टेरिक साइट एम्प्टी है, ठीक है। तो यहां पे कंफर्मेशन चेंज हुई, कंफर्मेशन चेंज के बाद क्या चीज आती है,
इनहिबिटर, ठीक है, ये रिएक्शन ऑफ कोर्स प्रोसीड कर सकता है आगे। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अगर पहले केस में देखें, अगर हम यहां तक देखें, यहां तक देखें तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, एलोस्टाइक साइट इज एम्प्टी, इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज एब्सेंट, तो ऑफ कोर्स रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो एंजाइम आपको मिल रिकवर हो जाएगा और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी, राइट। लेकिन एक और मजे की चीज यहां पे होती है, वो क्या है कि इनहिबिटर अगर बाइंड कर देता है, इनहिबिटर बाइंड्स इनटू द एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट कौन सी है, ये आपको नजर आ रही है विद एरो, राइट। और यहां पे हम ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल अगर लगा देते हैं, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है, इसकी इसका 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 क्या चेंज क्या आता है कि ऑफ कोर्स द ऑपोजिट साइड जो है, यहां पे आपको पता है, यहां पे ये कौन सी साइट है, एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट पे क्या बाइंड करना है, सबस्ट्रेट। तो क्या होगा, कंफर्मेशन चेंज ही नहीं आई है, उसने स्ट्रक्चर इनहिबिटर ऑलरेडी बाइंड हुआ है। तो दूसरी तरफ क्या है कि यहाँ पे एक्टिव साइट जो वो सपोर्टेड नहीं है फॉर द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और सबस्ट्रेट कैन नॉट फिट इनटू द एक्टिव साइट, ठीक है जी। ऑफ कोर्स देख आप, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो अवेलेबल है, बट एंजाइम में कंफर्मेशन चेंज नहीं आई, उसके स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आई टू रिसीव द टू प्रोवाइड द अटैचमेंट साइट फॉर द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है जी। तो ये ऑन ऑफ स्विच मैकेनिज्म जो है कि अगर इनहिबिटर नहीं लगा हुआ तो रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, राइट। और अगर यहाँ पे इनहिबिटर लग गया एट द एलोस्टेरिक साइट, तो क्या हो रहा है, वो कंफर्मेशन चेंज नहीं आ दे रहा, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है एट द एक्टिव साइट और रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता, ठीक है जी। इसी चीज को कंफर्मेशन चेंज को चेंज इन शेप से हम इसको डिस्कस करते हैं। व्हेन एन इनहिबिटर इज प्रेजेंट, अगर हम बात करें इनहिबिटर अगर अवेलेबल है तो क्या होता है, और ये इनहिबिटर जो है ये अपनी एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड कर गया, दैट इन दिस वेरी केस अ कंफर्मेशन चेंज अकर्स, राइट। कंफर्मेशन चेंज क्या आ रही है कि वो चेंज क्या हो सकती है, एंजाइम मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो सकती है, ठीक है जी। नंबर वन, द एंजाइम मॉलिक्यूल शेप चेंज हो सकती है। नंबर टू इज द एक्टिव साइट ऑफ अ सबस्ट्रेट चेंज हो सकती है, ठीक है। ऑफ कोर्स टू रिसीव, वो अलाउ करेगा कि आगे सबस्ट्रेट अटैच करना है या नहीं करना, ठीक है जी। ओके जी। ये कंफर्मेशन चेंज की कुछ डिटेल्स हैं, यहाँ पे हमने चेंज इन शेप से हमने इसको डोनेट किया था, कंफर्मेशनल चेंज, चेंज इन शेप, ठीक है जी। यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो आपको याद रखनी है कि अगर इनहिबिटर अगर प्रेजेंट है, इट फिट्स इनटू द साइट और एलोस्टेरिक साइट, तो ये क्या हो रहा है, इनहिबिटर मॉलिक्यूल यहाँ पे, यहाँ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अवेलेबल है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कंफर्मेशन चेंज आ रही है, ठीक है जी। ओके, आगे प्रोसीड करता हूँ, इसको कंटिन्यू करता हूँ। चेंज इन शेप की बात की, ऑफ कोर्स द कंफर्मेशनल चेंज से हम इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। अ नेगेटिव फीडबैक इज अचीव्ड। नेगेटिव फीडबैक कैसे आता है, नेगेटिव फीडबैक के लिए आपको जो चीजें याद रखनी है, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो एक सिंपल सी एक छोटी सी चीज है, वो है कि दिस इज नॉट अ कंपैटिटिव इनहिबिशन। नेगेटिव फीडबैक में क्या है, कंपैटिटिव इनहिबिशन नहीं है ये, बट इट इज रिवर्सिबल सॉर्ट ऑफ रिएक्शन, इज अ रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर इनहिबिटर कंसंट्रेशन कम होती है, अगर कंफर्मेशन सॉरी इनहिबिटर कंसंट्रेशन कम होती है, तो ऑफ कोर्स द एंजाइम एंजाइम्स कंफर्मेशन चेंजेस बैक टू इट्स एक्टिव फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि अगर इनहिबिटर बाइंड हुआ है तो वो कंफर्मेशन चेंज की तरफ नहीं लेके जाने दे रहा। तो अगर एंजाइम के साथ से अगर आप इनहिबिटर हटा देते हैं, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम सॉरी व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर
is diminished, उसको अगर कम होता है तो of course the next step will be the enzyme conformation changes back to its active form, or the reaction ultimately slows down in negative feedback. ठीक है जी. Of course हमने बात किया था, बात क्या की थी इसमें, कुछ इस तरह से A to B to C to D to E to final product was F, और ये क्या कर रहा था, इस स्टेप को जो एंजाइम यहाँ पे था उसको रेगुलेट कर रहा था. ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रहा है, फाइनल प्रोडक्ट मिला है, ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये रिएक्शन को अल्टीमेटली नेगेटिव फीडबैक के केस में जो ये स्पीडी रिएक्शन A to F जा रहा है, ये रिएक्शन को स्लो कर देगा. ठीक है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट फर्स्ट एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, जो हमने यहाँ पे EA के केस में देखा था. ठीक है जी. इसी की एग्जांपल अगर हम देखें, इसी की एग्जांपल अगर हम देखते हैं, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एग्जांपल देखी थी हमने, बड़ी कॉमन एग्जांपल हमने देखी थी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की. फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, in this particular enzyme phosphofructokinase पे क्या है, an active site for fructose 6 phosphate molecule. हमने यही बात की थी, fructose 6 phosphate के साथ क्या बनता है, fructose 6 phosphate के साथ क्या बनता है, ATP बाइंड करता है तो क्या बनता है, ADP बनाया था क्योंकि एक फॉस्फेट ले लिया था, और fructose 1,6 bis phosphate. ठीक है, ये मॉलिक्यूल बना था. अब यहाँ पे इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए जो एंजाइम था वो था फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. उस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के लिए हम देख रहे हैं, दिस पर्टिकुलर एंजाइम got an active site for fructose 6 phosphate. fructose 6 phosphate के लिए एक्टिव साइट है टू बाइंड विद अनदर फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, इसके ऊपर क्या है, आपके पास क्या मिल रहा है, एक एक्टिव साइट है फॉर द fructose 6 phosphate molecule to bind with the another phosphate, कि इसके साथ एक फॉस्फेट अटैच हो सकता है. एंड इट हैज एन एलोस्टेरिक साइट फॉर एटीपी मॉलिक्यूल, जो कि इनहिबिटर के तौर पर भी एक्ट करता है. fructose 6 phosphate फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के ऊपर क्या है, एक एक्टिव साइट है. ठीक है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एन एंजाइम जिसके ऊपर एक एक्टिव साइट है, जिसके ऊपर एक सबस्ट्रेट क्या था, fructose 6 phosphate, वो बाइंड करता है, राइट. और उसके ऊपर एक एलोस्टेरिक साइट है जिसपे आप बाइंड कर सकता है ATP, जो कि इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करता है. हमने ये बात की थी, एम्पल अमाउंट में ATP अवेलेबल है तो रिएक्शन और एंजाइम जो एक्टिवेट नहीं होता, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता. ओके, व्हेन द सेल कंज्यूम अ लॉट ऑफ ATPs, उसका रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है, द लेवल ऑफ ATP इन द सेल विल बी लो, राइट. व्हेन, अगर आप बात करते हैं लो ATP की, कि सेल ने कंज्यूम कर ली, बॉडी ने आपने कंज्यूम कर ली, तो जब अवेलेबल नहीं है, लो लेवल ऑफ ATPs हैं, तो ऑफ कोर्स उसका मतलब क्या है कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के ऊपर जो एलोस्टेरिक साइट है, जो एलोस्टेरिक साइट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर द ATP बाइंडिंग, तो वो ATP बाइंड नहीं कर रहा, राइट. अगर आप ATP की बात करते हैं, जब ATP बाइंड नहीं कर रहा, तो एंजाइम्स कन्फर्मेशन और शेप चेंजेस, और एक्टिव साइट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है सबस्ट्रेट को. ऑफ कोर्स एक इनहिबिटर इसके ऊपर बाइंड नहीं कर रहा है, एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड नहीं कर रहा, तो आप नेक्स्ट क्या कहते हैं कि उसके ऊपर क्या बाइंड करेगा, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा. ओके, फॉस्फोफ्रुक्टोज का फाइनल प्रोडक्ट जब हम बात करते हैं, ATP प्रोडक्शन, द ETC साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या हो रहा है, दिस पर्टिकुलर ETC accelerate and ATP builds up in the cell. जब ये सारा रिएक्शन हो रहे हैं to produce the energy, तो of course ATP is the end product, final product बन रही है. ATP आपके पास दोबारा आ रही है, ATP की कंसंट्रेशन रेज कर रही है आपके पास. जब ATP की कंसंट्रेशन बॉडी में रेज कर रही है, इसका क्या मतलब है कि मोर ATPs आर अवेलेबल, जो कि बाइंड कर सकती हैं विद द एलोस्टेरिक साइट,
और एलोस्टेरिक साइट ऑलरेडी अवेलेबल है एट द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम के ऊपर। ठीक है, जैसे ही एलोस्टेरिक साइट पे एटीपी बाइंड करता है तो इसका मतलब क्या है कि एम्पल अमाउंट ऑफ एटीपीज आर अवेलेबल, बॉडी क्या है, गुड स्टेट में, गुड एनर्जी स्टेट में है, तो आपका फिर से एंजाइम कन्फर्मेशनल चेंज में आएगा और क्या होगा, स्टॉप एक्सेप्टिंग द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट क्या था हमारे पास, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, जो सबस्ट्रेट था वो नहीं ले रहा, और जब वो नहीं ले रहा तो इसका मतलब है कि आगे उसको फर्दर उसको प्रोसीड नहीं करवाया जा रहा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द एनर्जी। ठीक है, और फाइनल रिजल्टेंट आपको क्या मिलता है कि एटीपी और द ईटीसी, एटीपी प्रोडक्शन विल बी लो, और ऑफ कोर्स एटीपी प्रोडक्शन अगर लो है तो उसका क्या मतलब है कि ईटीसी साइकिल और द डिफरेंट मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस द एनर्जी आर ऑन द लोअर साइड, और वो डिमिनिश हो गए हैं या इनहिबिट हो गए हैं सारे प्रोसेसेस, राइट। This was all about the basic uh, uh, content, course content of given in your uh, curriculum, कि जिसमें आपको कुछ चीजें जो जो आपको पता होनी चाहिए थी, जो आपके टॉपिक में हैं, उनमें ऑफ कोर्स एलोस्टेरिक एंजाइम और उनके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए, कि स्विच ऑन ऑफ मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, राइट। और उसके साथ आपको टाइप ऑफ इनहिबिटर्स की हमने बात की थी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, उनकी बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस की बात की हमने, राइट, कि नर्व गैसेस में यूज हो रहे हैं, सम ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स में हम उनको यूज कर रहे हैं, राइट। और फिर हमने कोर्स कंटेंट में नंबर 7 पे है, आई एम प्रीटी श्योर नंबर 7 पे है, इफेक्ट्स ऑफ कंपैरेटिव, नॉन कंपैरेटिव और अनकंपैरेटिव इनहिबिटर्स ऑन द एंजाइमिक एक्टिविटी। ये इनकी डिटेल जो हम, वो जो ब्रैकेट में आपको कुछ चीजें जो आपको नजर आ रही थी, वो अभी इसमें नहीं किया, इस सेशन में नहीं हो सकी। ऑफ कोर्स प्लान भी नहीं था, क्योंकि ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में ही जाने वाली हैं, तो हम उसको इंशाल्लाह उसको में वाइंड अप करेंगे। लेकिन आपको जो चीजें इस स्टेज पे भी पता होनी चाहिए, वो एलोस्टेरिक इनहिबिशन का पता होना चाहिए, एलोस्टेरिक साइट्स का पता होना चाहिए, ऑन ऑफ मैकेनिज्म पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कंफर्मेशनल चेंज क्या होती है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, उसकी एग्जांपल फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज में एटीपी की एग्जांपल देनी है आपने, ठीक है, जो एटीपी एक्ट एज एन इनहिबिटर, और उसका सबस्ट्रेट आपको पता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या है, पॉसिबली क्वेश्चंस क्या है, टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल, और फिर हमने रिवर्सिबल में फर्दर, एज यू ऑलरेडी नो, हमने फर्दर कैटेगराइज किया हुआ था कंपैरेटिव, नॉन कंपैरेटिव और अनकंपैरेटिव में, और इसी तरह इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स को फर्दर हमने कैटेगराइज किया था कंपैरेटिव और एलोस्टेरिक में, ठीक है। कुछ बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक मैकेनिज्म पता होना चाहिए, जो डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव, नॉन कंपैरेटिव एंड अनकंपैरेटिव वो पता होना चाहिए, और उनका इफेक्ट ऑन द लाइन वीवर बर्ग प्लॉट, और और उसके साथ एंजाइमिक एक्टिविटी पे इन इनहिबिटर्स का क्या इम्पैक्ट है, वो आगे इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ऑफ कोर्स we're done with the lecture. अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज you're more than welcome, right? No questions. uh, we had a question in last session. Let me have a review. क्योंकि लास्ट लेक्चर में मीटिंग क्लोज होते होते होने के साथ ही मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो देख सकता था, जिनके आंसर नहीं उस टाइम पे देखे, क्योंकि ऑफ कोर्स मीटिंग एंड हो गई हुई थी। तो मैं जरा क्वेश्चन देख लूं कौन से थे आपने पोस्ट किए हुए। ऑलराइट जी, ऑलराइट जी। क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
denaturation and coagulation, right? Okay, the key difference between key difference between the denaturation and the coagulation is कि denaturation is basically a change in the property of a molecule, right? Denaturation की अगर कि denature हो गया, nature के एंड ही चला गया, a change in the property of a molecule, ठीक है? What about the coagulation? Is basically a conversion of a liquid state molecule into a semi-solid or solid structure, right? अगर कुछ semi-solid structure में कोई चीज जा रही है, solid में जा रही है from a liquid, तो ये हम coagulate, हम बात करते हैं egg proteins coagulate हो गई, एग प्रोटीन्स की कोएगुलेशन की एग्जांपल लेते हैं, लिक्विडी पोर्शन होता है जब हम उसको बॉयल करने से पहले हमारे पास एग है, लेकिन जैसे हम उसको हीट देते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, कोएगुलेट हो जाती हैं प्रोटीन्स, राइट? ऑफ कोर्स साइड बाय साइड डीनेचुरेशन भी हो रही थी, बट द की डिफरेंस बिटवीन द डीनेचुरेशन एंड द कोएगुलेशन इज कि डीनेचुरेशन में चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल वो हो रहा है, जबकि कोएगुलेशन में सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड और मे बी अ सेमी सॉलिड, ठीक है जी? होप दिस विल बी द आंसर टू योर क्वेश्चन, राइट? सर सबस्ट्रेट लाइक इनहिबिटर साइट पे बाइंड कर सकता है? सर सबस्ट्रेट लाइक इनहिबिटर, ये इमन मुदस्सिर, राइट? इमन, can you please elaborate your question, right? जी, कोई क्वेश्चन है, किसी और को क्वेश्चन है, किसी चीज को कुछ समझ नहीं आई तो प्लीज बताएं। ऑलराइट, ऑलराइट सर, क्या इनहिबिटर एक्टिव साइट पे बाइंड कर सकता है या सिर्फ एलोस्टेरिक साइट पे ही बाइंड करेगा? ऑलराइट एमन, लेट मी क्लियर यू, हमने बात की थी कंपैटिटिव इनहिबिटर या कंपैटिटिव इनहिबिशन की बात की थी, वहां पे हमने बात की थी कि इनहिबिटर resemble to the normal substrate, right? Inhibitor competitive inhibition की बात की थी, competitive compete कर रहा है, either the inhibitor bind करेगा या substrate bind करेगा. Of course inhibitor can bind at the active site, right? ठीक है, and of course जब ये bind कर गया, ऑफ कोर्स इनहिबिटर बाइंड कर गया, तो अल्टीमेटली इट प्रिवेंट्स द सबस्ट्रेट फ्रॉम बाइंडिंग, ठीक है जी? अगर हम बात करें कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एंजाइम बाउंडेड है विद एन इनहिबिटर, तो वहां पे क्या सिनेरियो होता है आपका कि एंजाइम अगर इनहिबिटर के साथ बाइंड किया हुआ है इन केस ऑफ कंपैटिटिव इनहिबिशन, तो वहां पे आपके पास क्या होता है कि आपका सबस्ट्रेट नहीं बाइंड कर सकता, क्योंकि एक ही साइट अवेलेबल है जहां पे आइदर द सबस्ट्रेट और द इनहिबिटर बाइंड कर सकता है, ठीक है? बट जब हम बात करते हैं नॉन कंपैटिटिव की, तो वहां पे आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आती है, ठीक है, नॉन कंपैटिटिव में, अदर देन द एक्टिव साइट. और फिर अनकंपैटिटिव के लिए हमने बात की थी क्या बात की थी कि
कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपका होना चाहिए। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना हुआ तो ऑफ कोर्स उसको इनहिबिटर के बाइंड करने के लिए स्लॉट ही नहीं मिल रही है। ठीक है जी, नो मोर क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन, अगर आपका कोई कुछ चीज मिस हो गया हो तो प्लीज बताइएगा जरूर, और मेक दिस श्योर कि अपना फीडबैक जरूर दिया करें। ठीक है, दिस इज द ओनली वे वी कैन इम्प्रूव।